So let's go through delete and truncate, which actually we skipped that time. We did not went through, I think. So truncate is nothing but DDL, right? DDL statement. Okay. And delete is DML. Simple. So let's go through once. Delete is a DML or data manipulation command. So they may ask you like the difference between delete and truncate. So both can perform similar task also, and both has some limitation and some advantages. Okay. So delete is a DML command that is used to delete particular record from a table. It deletes the complete row from the table and produce the number of delete rows as output. You can use where clause with the delete command to delete specific record from a table. Okay. So delete can delete entire data from the table as well. And you can use where clause, where condition to delete some specific rows based on your condition. We already did it, right? Remember deleting a particular rows from a table, we use delete from table name where, like, right? Where Yeah. ID is equal to this. So delete has a facility of using where, whereas truncate, you cannot use where clause. Okay. With truncate, you cannot use where clause. That's why truncate statement is a DDL or data definition language command, which is used to delete the complete data from a table without deleting the table structure. Okay, I'll tell you what exactly it does. In other words, truncate statement drops the table. Okay, you remember these things. What exactly truncate does? Truncate actually drop your table and recreate the same with the help of metadata available for table structure. That means when you perform truncate table name, it deletes the table. It drops the table. Drop command is there, right? Drop table. So it drops from the backend, and from the metadata, it has already stored some structure for the table. It recreates the table as a fresh. You cannot use the where clause with this command like with truncate. Therefore, you cannot filter the record. So when you need to delete entire table, you can use truncate, and even you can use delete also without where clause. But what is the difference? Truncate doesn't like hold the row information and column information. Let me go through once. Okay. Suppose let me go to delete and truncate. Okay. समझ में आ रहा है अभी तक? कुछ भी डाउट है? एक बार एग्जांपल गो थ्रू करेंगे, देन यू गाइस इट विल बी इजी फॉर यू. लाइक एक कुछ भी टेबल निकाल लेते हैं. ठीक है. स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सो सपोज मेरे पास 15 रिकॉर्ड्स है, राइट? आई नीड टू डिलीट wherever the department is null. तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स है? एक है, राइट? आई नीड टू डिलीट wherever the department is null. 15 records है टोटल. Truncate, if I use truncate, okay, but what it says, truncate you cannot use where with truncate. Okay, suppose truncate table employee where, if you give where clause, where department code is null. See, incorrect statement near where, incorrect where. So it will not take where when you use truncate.
But if you use delete from, whenever you have to, always remember, whenever you have to delete some specific records based on some specific condition, use delete. Okay, delete from table where department code is null. If you delete it now, one row affected, and your department has no null now, and 14 records, one record deleted, right? Delete perform in your row label, but truncate perform entire table. Okay. So now let me do one thing. So if you insert now 14 rows affected. So now if you see, select star from this. So remember how to take backup in SQL. Okay, like this, select star into, you are selecting star from employee, but where you are putting into employee backup table. This table you never created, but when you mention this into, right, it automatically create as per the structure of employee. It actually nothing but a duplicate copy of employee. Okay, so if you run both the table, see, same as it is. Okay, so suppose again I need to create backup 2. So backup 2. If again I create on a backup 2 only, it will take already available because I already created just before some time, right? So like that you can create backup. Why I'm telling to create backup? Because you want to perform some delete and truncate so that you know, like, okay, your original table are intact. You do not delete your original table. So I'll perform those truncate and delete from my original table. Suppose in delete, I do not use where clause. What will happen? Tell me. It won't delete. It will. Why it will not delete? Like, it will Truncate. delete entire. Yes. That's why I told, right? Once, like update and delete. Carefully use where clause. There is one PPT like where we taught, we went through like importance of where or filters. So if I show you now, it has 14 records. If I just click here, it will delete 14. Now it doesn't, it has nothing. Now I'll show you the truncate. Okay, backup 2. So if I just truncate table backup 2, it will also have this. But what the problem is, if I create a auto increment, then I can show you. Uh, this actually what it is doing, it is dropping your table. It is drop table backup. It is dropping a table, your table, and creating again. Okay, this table. So that's why your structure remains same, but rows and columns are fresh. But in delete, although you have deleted 14 rows, but if you again use the auto increment, let me show you the auto increment, then you will come to know. Identity what I need 1 and like, what is this? Identity means start from 1 and increase by 1. Okay. And primary key. Just let me, or leave a primary key, you'll get again confused. Okay. Now just insert into example. You do not need auto incrementing, right? Bus name. Let's see why it is giving me. Okay, क्या देना है? values. Values. Good. So affected, क्यों affect हुआ? Because it is identity auto increment. You do not need any values. मैंने क्या बोला था कि whenever you have 2-3 columns and you are only inserting one column, like you have 2 columns, right? Employee ID, employee name, but you are only inserting employee name. Then SQL should get confused and it should give you an error कि इधर मेरा column का नाम भी लिख दो, क्या तुम दे रहे हो? Right? I told you earlier. But in this case, why it is not throwing any error? Because it's an auto increment column. So
it knows ki it's a auto increment column. So if you do not show here also ki I am only inserting one particular column and not the other, but I am not writing the column name also, then also it will take perfectly. It will not have any issue. If that was not an identity column and simply int, it would have give you error. I'll show an example. Suppose it's just an int, employee ID and employee name, example 1. Okay, complete successfully. Now if I go to insert in this particular example 111, क्या होगा बताओ? Column name and number supplied values does not match the table definition. So it is not able to identify where are you inserting Anamika, in employee ID or employee name. That time you have to give like this, and it will allow you to insert, right? समझ में आ गया डिफरेंस में क्या बोला अभी? Yes. अंडरस्टूड? तुम तीनों बोलो, Yeah. समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर मैं नहीं यस दूंगा, समझ में आया। ये नहीं दूंगा तो ये नहीं जाएगा, ये नॉर्मल सिनेरियो था। पर जब तुम ऑटो इंक्रीमेंट करते हो, राइट, आइडेंटिटी, तुमने बोला ही कि मेरा आइडेंटिटी है 1, तो इसको इंक्रीमेंट करते रहो, तो देन इट डजंट रिक्वायर बोथ द कॉलम सी 1। अगेन तुम अभी डालो, देखना ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब मैं एक्सेस दिखाता हूं। अब जब मैं इसको डिलीट करूंगा, डिलीट फ्रॉम, just give concentration, okay, delete from here where my employee id equal to 2, या ठीक है 2। ध्यान से देखना, हाँ, मैं एम्प्लॉय 2 को डिलीट कर रहा हूँ, चंदू को, ठीक है, 2 को डिलीट कर रहा हूँ, 2 डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा जब इंसर्ट करूंगा, वो 2 लेगा कि 3 लेगा बताओ? 2 नहीं लिया, वो 3 लिया। क्यों? although it deleted, it just cleared your data but not the, जो तुम्हारा 2 था वो ऑलरेडी मेमोरी में है, इसीलिए वो 2 लिया ही नहीं। अब 3 को डिलीट कर दूंगा तो देखना, it says like 3 already used by your delete, but although deleted 3 already used, so you cannot use 3 now. It will skip that 3 and it will give you 4। समझ में आ गया? सो ये जब 1 where क्लॉज के साथ तुम डिलीट करते हो, देन फाइन, यू कैन एडजस्ट विद दिस कि ठीक है 4 हो गया अभी। So whenever you are deleting, okay, whenever deleting particular line from a entire table, particular rows, okay, then always use delete। सपोज मैं अभी इसको पूरा एंटायर एग्जाम्पल को ही डिलीट कर दे रहा हूं, वेयर को हटा लो, आई एम डिलीटिंग एंटायर एग्जाम्पल, ठीक है, बट स्टिल माई एग्जाम्पल इज अवेलेबल, राइट। नाउ मैं इंसर्ट करूंगा, याद है अप टू 4 वी हैव इंसर्टेड, राइट, up to id 4, up to id 4 we had inserted and then deleted entire table, right। अभी जब हम लोग इंसर्ट करेंगे, मान लो अगेन कुछ भी नाम एक, तो ये क्या आएगा, id 5, तो it means it's still holding the old records and all those things in its memory, it is not clearing everything। तो जब तुमको एंटायर टेबल डिलीट करना होता है ना, एंड डिलीट परफॉर्म्स रो बाय रो, इसलिए ट्रंकेट इज फास्टर एज कंपेयर टू डिलीट। अब मैं दिखाता हूं तुमको, जैसे अभी 5 कर लिया, दोबारा इंसर्ट कर लो, ठीक है, 6 आ गया। अब मैं इसको ट्रंकेट करूंगा, ठीक है, अब देखो डिफरेंस, ट्रंकेट टेबल एग्जांपल, ठीक है, जब मैं ट्रंकेट करूंगा, 5 6 था ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ट्रंकेट कर दिया। नाउ इफ यू एंटर चंदू अगेन, it again come back to 1,
क्या किया ट्रंकेट एक्चुअली, क्यों वन आया, ट्रंकेट एक्चुअली ड्रॉप योर टेबल and recreate it. What trunket did you know? Trunket actually drop table example this, ये कर दिया, ड्रॉप कर दिया और दोबारा क्रिएट कर दिया. समझ रहे हो, ट्रंकेट ये किया बैकएंड से. Yes. सो दैट्स व्हाई ट्रंकेट इज फास्टर, क्योंकि ड्रॉप ज्यादा टाइम नहीं लेता है ना. ड्रॉप डजंट लुक फॉर रो बाय रो, इट डायरेक्टली ड्रॉप द टेबल एंड अगेन इट क्रिएटेड. क्रिएट भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है, फ्रेश क्रिएशन. बट डिलीट क्या करेगा, एक बाय एक लाइन. अगर मेरे पास 1 मिलियन लाइंस है, पूरा एक साथ धीरे धीरे एक एक करके डिलीट करता रहेगा. सो दैट्स व्हाई विद द ह्यूज डेटा सेट डिलीट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम देन ट्रंकेट. सो जब तुमको एंटायर डेटा डिलीट करना हो, बेटर यू यूज ट्रंकेट रादर देन डिलीट. हाउएवर delete is having one additional features where you can use where condition with delete, right? But you cannot Yes. use where clause or where condition in truncate. सपोर्ट मैं अगेन इसको डाल रहा हूँ इंसर्ट इनटू. क्या हुआ, मेरा एग्जाम डिफरेंट था क्या? ओके डिफरेंट था, ये था. ओके अगेन मैं डाल रहा हूँ वैल्यूज. एक आ गया, दूसरा आ गया, थर्ड आ गया. सो नाउ इफ यू वांट टू डिलीट एनी वन ऑफ देम, सपोज टू, so you can use delete rather than truncate. Truncate you cannot use. Okay, delete from table where my id, employee id equal to 2. अगर मैं इसको सिंपली डिलीट स्टेटमेंट रन कर दूंगा, it will only delete my 2 id. Okay, understood? Truncate I need to perform an entire table. ठीक है, समझ आया कहाँ ट्रंकेट यूज करना है, कहाँ डिलीट यूज करना है. Yes. जब तुम्हारे पास बहुत सारा, और हमेशा याद रखना, whenever you're deleting something from a table in a production life or a trunket, just try to take backup. क्योंकि कभी क्या होता है, you delete it and you will not get back that, right? So that time if you have a backup, तब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों बोल रहा हूँ, सपोज सो यू हैव दिस, आई शो एन एग्जांपल लाइव क्या होता है वहां पे. ठीक है, जैसे तुम्हारा 3 रिकॉर्ड है, तुमको आया कि तुम ये नरेंद्र को डिलीट कर दो, 3 नंबर को. ठीक है, उससे पहले तुमने क्या किया, एक बैकअप ले लिया कि चलो मैं एक बैकअप लेके रख देता हूँ, इफ एनीथिंग दे नीड आई कैन रिट्रीव. बैकअप, बैकअप. ठीक है, तो इसको अगर बैकअप लग के रख दिया, तो मेरा एक टेबल रह गया, ये वाला, ये वाला टेबल. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, तो मैंने ये बैकअप ले लिया. अब दिखाता हूँ, दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम ही है, अभी दोनों टेबल में डेटा भी सेम है. अब तुमको बोला है कि एग्जांपल से जो मेन टेबल है उधर से डिलीट कर दो, डिलीट हो गया. अब दोनों टेबल में देखो, जो बैकअप वाला है अभी भी वो 3 रिकॉर्ड बाकी है, क्योंकि ये डिफरेंट टेबल बना लिया तुमने ना, और इससे 3 हट गया. अब वो लोग बोल रहे हैं कि अरे बाय मिस्टेक यू शुड हैव डिलीट अनामिका बट यू डिलीटेड नरेंद्र. मतलब ये एक एक डेटा का नहीं बोल रहा हूँ, ह्यूज डेटा सेट्स, मतलब बहुत सारा डेटा था वो डिलीट हो गया. अब तुमको कैसे रिट्रीव करना है, फिर तुम इस बैकअप को फिर दोबारा इसमें लोड कर दोगे, हो गया. समझ रहे हो, तो इसको रिट्रीव कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है ही ऑलरेडी. तो ये बैकअप का कॉन्सेप्ट है कि बैकअप क्यों लेते हैं. ठीक है, और अगर ये परफॉर्म सही हो गया, डेट ऑल ओके, करेक्टली रिलेटेड, वी आर ओके टू गो. तुम 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद जब तुमको जरूरत, पता लगा कि हाँ अभी बैकअप का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो बैकअप वाला फाइल डिलीट कर दो, ड्रॉप. वो बैकअप टेबल का तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारा बैकअप टेबल ऐसे ही स्पेस ले रहा था, राइट, उसको डिलीट कर दो, ड्रॉप. बैकअप टेबल ड्रॉप हो गया, तुम्हारे पास एक ही टेबल रह गया. ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग सिटी में. ठीक है,
टाइम टेबल विल गो थ्रू लेटर यार, ठीक है, डिफरेंस लिख दिया था मैंने. टाइम टेबल इज नथिंग बट इजी, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली. चलो पहले टाइम टेबल ही जाते हैं. टाइम टेबल के लिए क्या है टाइम टेबल, और एल्स लेट्स गो टू सिटी. टाइम टेबल लेटर ऑन विल गो थ्रू. सिटी क्या होता है, with the differences only you will come to know difference between city and timetable. So storage, city are not physically stored on disk while temporary tables are. Lifespan, city exists only for the duration of query execution while temporary tables can exist beyond single query execution. ठीक है, ये सब बता देता हूं मैं प्रैक्टिकली. एम्प्लॉय, सिटी का नाम है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. टेबल एक्सप्रेशन. सो ये टेबल एक्सप्रेशन मतलब ये एज ए एक्सप्रेशन काइंड ऑफ यूज होता है कि भाई इट्स नॉट ए टेबल हु इज टेकिंग योर स्पेस हियर, इट्स जस्ट ए मेमोरी एलोकेशन. एंड व्हाई सिटीज प्रिफरेबली should use not in like in a small data sets because ये मेमोरी में लेता है ना, मेमोरी में अपना टेबल को होल्ड करता है फॉर द टाइम ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूशन. तो तुम्हारा अगर डेटा कम है ना, ज्यादा बहुत ह्यूज नहीं है, मान लो एकदम पूरा मिलियंस ऑफ रोज नहीं है, देन यू कैन इजिली यूज सिटी, इट इज अ फास्टर थिंग. बट इफ योर टेबल इज वेरी ह्यूज, लाइक तुम्हारा डेटा जो तुम सिटी में लेके रहे हो ना वो बहुत ह्यूज है, तुम्हारा मेमोरी वो एलोकेट मेमोरी होता है ना, फोन मेमोरी जैसे. सपोज योर फोन हैज ए 2 GB मेमोरी. क्यों लोग 6 GB मेमोरी के लिए जाते हैं? आईफोन हो गया, एंड्रॉइड हो गया, व्हाई पीपल लुक फॉर रैम लाइक मेमोरी. वो लोग बोलते हैं ना स्टोरेज कितना है, मेमोरी कितना है. एडवर्टाइजमेंट में क्यों देता है कि मेमोरी 8 GB 12 GB, क्यों बताओ, किसी को आइडिया है? व्हाई द मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोन. यू आर यूजिंग फोन राइट, यू शुड नो दिस. टेल मी एनीवन. If your memory is more, Fast no, processing. it will be very fast. हाँ, if your memory is less or memory is more but you are doing some activity which is taking lots of time, like you are having 2 GB memory but you are using 8K video, Hmm. will it work perfectly than full HD? Your full HD will like work very nicely, but 8K or 4K will give you some, flicker or something in screen because your memory is not able to hold it. So the same thing happens in here also. सिटी अपना मेमोरी लेके सिस्टम का उधर से ही तुम्हारा क्वेरी के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है. सो व्हेन योर डेटा इज टू ह्यूज, ये सिटी मेमोरी एलोकेशन फिर ले लेता है पूरा ह्यूज डेटा में, तो तुम्हारा मेमोरी कम हो जाता है बाकी एग्जीक्यूशन के टाइम, तो थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो होता है. दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सिटी वी कैन यूज टेम्प टेबल, क्योंकि टेम्प टेबल ए फिजिकल टेबल क्रिएट करता है यहाँ पे फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये है सिटी और टेम्प टेबल हम लोग कब कब यूज करते हैं उसका डिफरेंसेस. एंड मोस्टली यू कैन यूज सिटी क्योंकि अपना डेटा सेट इतना भी बड़ा नहीं होता है कि सिटी नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता है. सो मोस्टली यू कैन यूज सिटी. सपोज अगर मैं स्टार फ्रॉम ये लगा रहा हूँ और मुझे चाहिए कि वेयर, वेयर सिटी क्यों यूज करते हैं पता है? देखो सिटी यूज करता है स्कोप. सिटी आर ऑफन ओवर टेम्पररी टेबल. ओके, ये एक पॉइंट है. सिटीज आर ऑफन प्रिफर्ड ओवर टेम्पररी टेबल्स, okay, when you need to simplify complex queries and improve query readability. CTs are also useful when you need to reference the same results at multiple times within the same query. So CT, और मैं एक बार बता देता हूँ सब क्वेरी एंड CT का डिफरेंस. सब क्वेरी यू ऑल नो, मैं तुमको दिखा भी रहा था कि सब क्वेरी के थ्रू कैसे कर रहे थे, राइट? सो यू कैन यूज सब क्वेरी ऑल्सो, यू कैन यूज CT ऑल्सो. वेयर सैलरी, सिंपल से एग्जांपल दिखा रहा हूँ. सैलरी मोर देन 5,000, ठीक है, ओनली 1%. तो इसको मैं सब क्वेरी में भी लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ. ओके, एक्स कुछ एक देना है राइट, एलियस, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं. एंड मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. सिटी के साथ हमेशा विथ आएगा, विथ क्लॉज, तो इसीलिए इसको विथ क्लॉज भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग. विथ सिटी, सिटी का नाम कुछ भी दे सकते हो.
मैंने सिटी इसीलिए लिया तुमको पता लगे सिटी है बोल के। ये नरेंद्र भी दे सकते हैं हम लोग, नरेंद्र एज। और सिटी में उल्टा होता है, जैसे इसमें इनसाइड में होता है ना, सिटी में ऊपर होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नरेंद्र। देखो नरेंद्र एक सिटी बन गया, आ गया। सो बट हमेशा इसके आगे सिटी अंडरस्कोर ऐसे लिख दो ताकि तुम लोग को पता लगे कि ये सिटी है। ये एग्जांपल दे रहा था मैं। ओके, अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो सेम ही आ गया। वाई वी प्रिफेर, ओके कॉमा एक दे देता हूं, अब चलेगा। वाई वी प्रिफेर सिटी ओवर सब क्वेरी। देखो सब क्वेरी में क्या हो रहा है? वन inside query it is hitting your real table, right? Your employee table. You got it? Because it is going to your employee table in your database. It is hitting your database, right? It is hitting your master database and going to the table, bringing you all the calculation where salary is more than 500. And after it is hitting your database, it again goes to the outer query. And when it runs the outer query, it again hitting the database again, right? Like it is hitting first this. Understand? First, it is hitting your database, data table. Second, star from, it again hits your data, right? So subquery is hitting multiple time your databases. But CT, what it is doing, one time it is hitting your databases, but second time what it is hitting? Your CT, ये जो कि एक मेमोरी हो गया, ये एक मेमोरी एलोकेशन है, इट्स नॉट ए टेबल। तो तुमने ये पूरा डेटा को टेबल से डेटाबेस को हिट करके उठाया और इसको एलोकेट कर दिया एक मेमोरी में कि भाई ये सिटी नरेंद्र मेमोरी जो है इसमें रख दो। और ये अकेला रन नहीं होता है, इसको रन नहीं कर सकते, इसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे लिखना पड़ेगा। और इस मेमोरी को तुम अभी दोबारा सिलेक्ट करके मुझे शो मी द डेटा फ्रॉम दैट मेमोरी। सो इट इज हिटिंग वंस टू द एम्प्लॉय टेबल, not twice. It is hitting once and it is bringing that data to the city, that memory allocation, and through the memory allocation of that city it is showing me the data. So समझ गया city is, why city is faster and preferable? क्योंकि ये तुम्हारा उस within the what it says, city actually last only the execution time. That's why जब हम लोग ये execute करते हैं ना, city को भी select करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये जब रन कर लिया, डेटा आ गया, ये city empty हो गया, इसमें कुछ नहीं है अभी, ये मेमोरी रिलीज कर दिया। लाइक सिटी टेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी स्पेस once executed and release once result set came. ओके ये तुमको रिजल्ट सेट देते ही फिर ये खाली कर दिया मेमोरी। वो बोल रहा है कि ठीक है रिजल्ट सेट आ गया, मेरी जरूरत नहीं है अभी। दोबारा रन करोगे, दोबारा फिर ये दोबारा ये डाल रहा है इसमें मेमोरी में, दोबारा ये कर रहा है। समझ में आ गया? मतलब सिटी बोल के कोई Yes. टेबल नहीं है इधर। देखो इधर तुम टेबल, डायरेक्ट टेबल का तुमको पता लग रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल, और ये दोबारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये सब क्वेरी, मतलब ये दोबारा टेबल ही है। बट हियर देयर इज नो टेबल अवेलेबल एज सिटी नरेंद्र। यू आर जस्ट गिविंग ए एलोकेशन स्पेस कि भाई ये जाओ इधर, इधर चले जाओ नरेंद्र में। ओके फिर नरेंद्र में मुझे डेटा आ गया। अगेन यू कैन डू बेस्ड ऑन दैट सिटी, हियर आल्सो यू कैन डू समथिंग। If you have many rows, you can do some calculation where or something, anything you can use. Okay. So think city as a table, like you're creating a table. It's nothing but a table, simple normal table, but based on memory allocation. Okay. So temp table में क्या होता है, अभी मैं दिखाता हूँ एक बार temp table का एग्जांपल कि सपोज इसी डेटा को मुझे टेम्प टेबल में चाहिए। टेम्प टेबल का कैसे लिखते हैं? टेम्प टेबल लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। आई विल टेल यू। टेम्प इज नथिंग बट टेम्पररी टेबल। That table is a temporary. CTE lasts for the execution time. When you execute, click here and it release your memory. CTE lasts till that time. Okay.
but temp table lasts till you close this particular what query view. If you close this, your temp table will be gone. But temp table can be like city can be used only in single this within this query, right? Temp table can use any query like 2 3 times, like anywhere, because it lasts till the time it is available. And temp table are two types. Okay, one is local and global. लोकल मतलब क्या है? लोकल जब क्रिएट करोगे, लोकल इज लोकल विथ वन हैश, बस ये। एंड ग्लोबल विथ टू हैश। लोकल काम करता है ओनली फॉर योर पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर विंडो, ये क्लोज कर दोगे तो लोकल गया। बट ग्लोबल वर्क्स इन मल्टीपल विंडो ऑल्सो टिल दैट टाइम यू क्लोज एवरीथिंग। जब तक तुम्हारा दो है, दोनों में ग्लोबल काम करेगा। दोनों क्लोज कर दिया ना, तब ग्लोबल भी गायब हो जाएगा। एंड मल्टीपल यूजर भी ये ग्लोबल में काम कर सकता है। ठीक है, लोकल में बस यू कैन यूज ओनली इन योर क्वेरी। ग्लोबल में इट कैन बी यूज्ड बाय लाइक मेनी विंडोज। इसमें भी और दूसरा एक क्रिएट कर लोगे, उसमें भी ग्लोबल यूज कर सकते हो। Okay, so let's try one thing. Like we have created this table, right? So suppose मैं इस टेबल का एक इनटू, जैसे अभी बताया था चंदू ने, इनटू टेम्प टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, टेम्प टेबल मतलब हैश आ गया ईएमपी, ये हैश बोले तो टेम्प टेबल हो गया, लोकल टेम्प क्रिएट कर दिया, इफेक्ट हो गया। अब मैं इसको भी रन करूंगा ना, ये भी मुझे सिलेक्ट था। ये नथिंग बट एक टेबल ही है। देखो आ गया, सेम डाटा आ गया। ये एक टेबल ही है एक्चुअली, बस टेम्पररी है। ये देखो डाटा आ गया, लेकिन इसको मैं दूसरा वाला ब्राउजर में जाके देखूंगा ना, ये दिखाएगा नहीं। देखना, इसमें अगर मैं देखूं जाके, ये नहीं दिखाएगा। I told you, right? Temp table is local temp table is only for that particular execution like query window. उसके बाहर नहीं काम करता, इसी में काम करता है। लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम कर लेगा, कहीं भी कर लेगा। सिटी की तरह नहीं है कि एक ही में करेगा। इसमें कहीं भी तुम डालो टेम्प टेबल को मोर देन 5,500, तो इस ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, हर कुछ रन हो जाएगा 5,000। और टेम्प टेबल कहाँ क्रिएट होता है? टेम्प टेबल एक्चुअली it get see, you saw like default you have couple of databases, right? Master system databases. So if you see there is a temp table, temp table actually create होता है इसमें। If I just expand this temp db and table, okay, किधर होगा यार? ये रहा सॉरी, ये टेबल्स में नहीं, ये रहा टेम्पररी टेबल्स। सी, I told you, right? And it assign you some numbers 004, so db स्टार हैश टेम्प टेबल। ठीक है, अगर अभी देखो मैं क्या बोला था, एक ही इसमें काम करता है, जब तक है ये विंडोज काम करता रहेगा। व्हेन आई क्लोज दिस विंडोज, सेव कर लेता हूँ। व्हेन आई क्लोज दिस विंडोज, और दूसरे में तो काम कर ही नहीं रहा था ऐसे भी, राइट? ये देखना, ये रिफ्रेश कर दूंगा मैं, अभी देखो गायब हो गया, नहीं है, Table. गॉन। सो Yes. टेम्प टेबल इज नथिंग बट टेबल ओनली, जो तुम्हारा टेबल था, ट्रीटेड एज ए टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो टाइम। जब तुमने उसको क्लोज कर दिया क्वेरी विंडो को, तो तुम्हारा टेम्प टेबल गायब हो गया। देखो नहीं है। New table. अंडरस्टूड? Yes. Open. समझ में आ गया टेम्प टेबल का क्या हिसाब किताब है? एंड टेम्प टेबल में जैसे इंसर्ट इनटू बैकअप की तरह दिखाया था ना, सो टेम्प टेबल यू कैन क्रिएट ऑल्सो। दिखाता हूँ टेम्प टेबल कैसा होता है। जैसे तुमने नॉर्मल टेबल को क्रिएट किया था ना,
सिमिलरली यू कैन क्रिएट टेम्प टेबल ऑल्सो, क्रिएट टेबल, ऐसा ही था ना नाम, क्रिएट टेबल, सपोज टेम्प टेबल एग्जाम्पल, एक मैंने टेबल कला ऐसे ही टेबल का नाम दे दिया, आईडी इंट नेम varchar, ठीक है। सो सेम ही है स्ट्रक्चर जैसे मैंने उसमें किया था, देखो क्रिएट हो गया, सिमिलर ही है ना, ऐसे ही तो करते थे ना उसमें भी, नॉर्मल टेबल में भी। So you do not need to worry about temp table. It's simple like normal table. Just remember temp table only works for that particular execution time. तुमको अगर जल्दी जल्दी कुछ करना है तो इसमें करके तुम बिना हिलाए, मतलब बिना touching, without touching your original table, if you want to do some R&D and all those things, you can do in the temp table also. And once you close it, it will automatically delete it. It will not take your space, anything. ठीक है। सो अभी इसमें मैं इंसर्ट सिमिलर वे इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे हम लोग इंसर्ट इनटू टेम्प टेबल डाल दो, जो नाम था तुम्हारा, ठीक है। वैल्यूज क्या डालोगे, 1 चंदू डाल दो इसको, सो इट विल गेट इंसर्टेड, व्हाट हैज हैपन, वैल्यूज सॉरी। सो नाउ इफ यू सिलेक्ट, सी द सेम way, right? And now if you refresh, your temp table appeared. Now if you just close it, your temp table gone. तो temp table भी क्यों यूज करते हैं? Just to perform some additional task for reporting and all those purpose. We'll go through those examples. For now, just remember how to use temp table and all those things, how to create and what exactly how it works, all those things. Okay. अब जैसे मैं temp table का दिखाया, अगर सिमिलरली इसमें मैं डबल हैज लगा देता हूँ, क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरली क्रिएट भी हो जाएगा जैसे मैंने अभी दिखाया, यू गाइस ऑलरेडी अंडरस्टूड राइट हाउ टू क्रिएट सिमिलर लाइक टेबल, बट आई एम गोइंग जस्ट लिटिल शॉर्टकट। सो डबल हैश लगा दिया, ग्लोबल, ये हो गया ग्लोबल एग्जांपल, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, देखना ग्लोबल एग्जांपल आ गया। आप इसमें जाके रिफ्रेश करो, आ गया देखो ग्लोबल एग्जांपल, ठीक है। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्लोबल एग्जांपल हियर एज वेल, and if you just open a new window query, new query, here also it will work, see। एंड पुराना वाला जो था ना, उसमें भी अगर जाके कर लेंगे, जैसे पुराना वाला कहा था, ये था, सब में कर लेते हैं यार एक बार देखो इसमें भी काम हो रहा है, इसमें भी काम हो रहा है, सब में काम हो रहा है। अब इसको क्लोज भी कर दो ना, फिर भी दूसरे में काम होगा, इसको क्लोज कर देता हूँ तो दूसरे में काम हो रहा है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये कौन सा है, ठीक है। इसमें भी डाल के देखता हूँ, ओके। बट इफ आई क्लोज एवरीथिंग, लेट मी जस्ट keep it here, but if I close now everything, ठीक है, जब तक ओपन रहेगा तब तक तुम्हारा दिखाएगा, उसके बाद नहीं दिखाएगा, मतलब वो जिसमें तुमने क्रिएट किया उसके बाद जो भी ओपन करोगे उसमें रहेगा। सपोज आई विल शो यू एन एग्जांपल, विल गो थ्रू एन एग्जांपल, ये है फर्स्ट वाला मेरा पेज, फर्स्ट पेज, अभी मैं सेकंड पेज ओपन करूंगा, ये है सेकंड पेज। विल गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेज सो दैट वी अंडरस्टैंड फाइन, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, और जिसमें क्रिएट किया था अभी वो ओपन करता हूँ, कहा गया रिसेंट फाइल्स सिटी, ठीक है, ये था राइट ग्लोबल, तो ये मैं ग्लोबल कर देता हूँ। क्या हो गया, एम्प्लॉय को डिलीट मार दिया क्या मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके टेम डीबी में दिखा रहा है ना, वास्तव में जाके करना है, आ गया, ओए यार, ठीक है। तो अभी मैं इसको ग्लोबल में डाल रहा हूँ, डन है, ठीक है। अभी मैं इसको जाके और एक अभी आफ्टर वाला जो फिफ्थ
फिफ्थ नाम देता हूँ, इसमें इसमें क्रिएट करता हूँ, मतलब इसमें भी सिलेक्ट करके देखता हूँ। सिलेक्ट तो सब में हो जाएगा, हाँ मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल कि बंद करते वक्त कैसे डिलीट हो जाता है, इसमें भी आ रहा है। और जो फर्स्ट सेकंड था ना, कहा गया, ये सेकंड पेज था ना, इसमें भी अगर मैं ये रन करूं तो ये भी रन हो जाना चाहिए। रन हो गया, लेकिन मैं डिलीशन का बोल रहा हूँ। जैसे मेरा ये वाला अगर मैं जो बाद में किया था वो भी डिलीट कर दिया, ठीक है, फिफ्थ वाला, और ये वाला भी डिलीट कर दिया। अभी देखेंगे रन करके सेकंड वाले में, देखो नहीं आ रहा है। फर्स्ट पेज वाले में देखते हैं। अभी समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? जिसमें तुम क्रिएट करते हो ना, जिस भी विंडो में क्रिएट करते हो While वो creating, no, you while closing, just save that. क्या, no, I You have saved. gave. See, what I'm telling, when you create your global, where whatever window like this page you have created, after that page, if anything is there, it will work. But if you close those all pages, Same the page. before page, earlier pages will not work. Like they will not take that. That page should be available. Then that will work. सपोज टैम्प में नहीं बनाएंगे हम लोग ना, उसमें बना रहे थे। सो एटलीस्ट वी अंडरस्टूड राइट ग्लोबल और लोकल का डिफरेंसेस। ओके, ठीक है। तो ग्लोबल लोकल हम लोग इन फ्यूचर लाइक कमिंग डेज विल गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। बट अभी फिलहाल ये जानो कि सिटी और टेम्प में डिफरेंस क्या है। टेम्प टेबल क्रिएट a space here for that particular time period, okay, and you can execute multiple things for that particular window. But city only can be executed during the time of execution. उसके बाद city का memory allocation, and city never create here any temp or anything. It's just a memory allocation. ठीक है, ये स्पेस नहीं लेता, temp थोड़ा सा स्पेस लेता है for that particular time being. Okay. सिटी मतलब तुम्हारा देखने में थोड़ा इजी रहता है और तुम समझने में भी इजी रहता है कि देखो सिटी ऐसा ऐसा दिखेगा, सिटी एस, तो तुमको पता है कि मैंने ये कैलकुलेशन किया है और इस टेबल में लेके आ रहा हूँ। तो क्या एक्सटेंसिव हम लोग एग्जांपल जाएंगे। सिटी का और एक वर्क है रिकर्सिव सिटी, ठीक है। रिकर्सिव सिटी इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इट डज is a common table expression. It's city only is a query that continuously reference a previous result until it returns an empty result. What exactly it does? It has this many things like anchor query, recursive query, and break condition. What is anchor query? This act as the starting point for the query. So if someone asks you about recursivity, they tell that do you ever perform recursivity and what it does. So you can easily explain, okay, recursivity is city only. It just do a kind of a loop. Okay, it give a recursive result. Recursive means what? Again and again, right? So what is this? It is a three-part anchor query. Anchor query is nothing but the starting point. Recursive query, ठीक है, recursive queries runs iteratively until the condition is met. And break condition, here the break condition is very important. If you do not break condition, it will go recursively until the infinity, like endless, on some conditions. How? I'll tell you. Suppose this is a very easy example. Suppose I recursive city is also like similar city kind of, with city का नाम दे दो cte number, okay. तो सपोज मैंने क्या डिफाइन किया, ये हो गया मेरा एंकर, एंकर क्वेरी, राइट, एंकर जो इसमें था, एंकर क्वेरी। ये हो गया मेरा रिकर्सिव क्वेरी, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा हो गया ब्रेक पॉइंट। विदाउट ब्रेक पॉइंट, अब तुम बोलो कैसे होगा, कितना दूर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू 1, मतलब n ये इक्वल टू 1, देखो इसको रन करता हूं बस, मतलब n कॉलम का 1, 1 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, n प्लस 1, एक को प्लस करते जाओ, प्लस प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 हो गया, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 1। सो व्हाट एक्चुअली रिकर्सिव
city does, it actually have a starting point, which is actually anchor query or starting point. Okay. And this is like interval, like कितने, जैसे recursive का क्या था, following the anchor query, the recursive query runs iteratively until a condition is met. ठीक है. And this is the break point, like until a condition is met. If you are not giving a condition or break point, what it will do? देखो ये 10 है ना, 10 लाया, 10 तक लाया, 1 प्लस प्लस करके अगर मैं इसको 1000 दे दूं तो 100 दे दूं तो 100 लाएगा. If I am not giving any break point, now see, maximum recursive 100 has been existed. तुमको 14 नंबर चाहिए, अप टू 14. तो सो व्हाट इट इज डूइंग, देखो मैं बता रहा हूँ recursive क्या कर रहा है इसमें. स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो गया, राइट. और बाद में ये n हो गया, ये हो गया n प्लस 1 वाला. तो क्या करेगा n प्लस 1, इसको जाएगा प्लस 1 कर देगा. 2 आ गया, गॉट इट. अब क्या करेगा ये, फिर मेरा n प्लस 1 बन जाएगा n, राइट. ये बन गया मेरा n. अब इसमें दोबारा क्या करेगा, वही हिसाब किताब करेगा, भाई एक और ऐड कर दो 3. तो n जितना बढ़ता जाएगा तुम्हारा ये भी बढ़ता जाएगा. देखो समझ रहे हो, तो प्लस 1 1 करते जा रहे हैं. और सिंपली मैं ये भी कर सकता हूँ F4 की जगह G1 प्लस 1. तो इसको मैं आगे तक लेके जाऊंगा. देखो ये जहां तक जाना है जाता रहेगा पूरा, तुम जब तक तुम स्टॉप नहीं लगाओगे. ठीक है. तो रिकर्सिव वही करता है कि तुम्हारा एक एंकर क्वेरी होता है स्टार्ट क्वेरी, जो कि तुम्हारी ये है कि स्टार्टिंग, मैंने स्टार्टिंग डिफाइन कर दिया है n1. अगर मैं इसको 100 कर दूं और बोलूं 100 को 1 1 करते जाओ अप टू 140 और अप टू 110, मिनिमम लेस देन 110 और इक्वल टू 110. देखो 100 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 अप टू 10. समझ में आ गया ये चीज. सिमिलरली अगर एग्जांपल दिखाता हूं, ये सिटी एक मान लो डेट्स का. ठीक है. मैं क्यों यूज कर रहा था, सपोज ये मुझे बार बार जाके, जैसे इसमें अभी मैंने लिख दिया एक डेट कि इस डेट से इस डेट के अंदर मुझे चाहिए. ठीक है. या तो ये मान लो 9, ये 9 1 से लेके 10 6 तक मुझे सारे डेट चाहिए. एक डेट प्रिपेयर कर लिया, पर तुमको अभी ये बार बार ऐसे लिखते रहना, इधर गलती हो सकता है ना कुछ भी. तो इसलिए तुमको क्या, तुमने बोला कि मैंने इधर एक डिक्लेयर कर देता, एक वेरिएबल डेट 1. और डेट 1 में मैंने क्या डिक्लेयर किया कि डेट 1 ए वेरिएबल कैसे करते यूज करते हैं, वी कैन यूज मल्टीपल वेरिएबल्स, ओके, इन सिक्वल लाइक विद द हेल्प ऑफ @. जब भी एक वेरिएबल मतलब ये एक मेमोरी एलोकेशन है. वेरिएबल पता है ना, वेरिएबल क्या होता है, एक स्पेस हम लोग लेते हैं मेमोरी से कि मुझे इतना सा थोड़ा सा स्पेस दे दो जहां पे मैं अपना डेटा रख सकूं. ये डेट 1 की जगह तुम आई या कुछ भी लिख सकते हो, बट @ देना, आई ऐसे भी लिख सकते हो. इसमें @i आ जाएगा और इसमें @i आ जाएगा. मतलब कुछ भी वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो. ठीक है. देखो डेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए कि डेट 1 का मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ डेट. अगर डेटा टाइप डिफाइन नहीं भी करोगे तब भी एरर देगा कि भाई डिफाइन तो करो उसका क्या है ये. तो डेटा टाइप डिफाइन कर लिया डेट, फिर सेट किया मैंने कि भाई ये डेट में क्या रहेगा, ये डेट का वैल्यू होगा मेरा ये. अपडेट करते वक्त याद है ना सेट यूज करते हैं, तो क्या होता है इधर वाला इधर इंसर्ट हो जाता है ना. तो सिमिलरली ये डेट मेरा @date में इंसर्ट हो गया, और ये @date एक मेमोरी एलोकेशन है जिसको मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया था एज ए डेट फॉर्मेट. फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो मेरा इसका वैल्यू आ रहा है. तो फिर ये डेट 1 की तरह मैं डेट 2 भी एक बना लूंगा, डेट 2. और डेट 2 में क्या आएगा मेरा, ये वाला जो मेरा वेयर कंडीशन वाला है, डेट 2. ठीक है. एंड इसमें डेट 1 में मान लो 9 ही दे देता हूँ, 9 20. ठीक है. अब मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ एक बार मेरा करेक्टली आया है कि नहीं डेट 1.
प्लस डेट टू टू। अब अगर मैं देखूं, देखना डेट वन एंड डेट टू का वैल्यू आ रखा है। अब मैं यही डेट वन डेट टू को ना इधर यूज कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ गिविंग डेट्स इधर मैं यूज कर सकता हूं डेट वन, और एन मुझे कहाँ पे चाहिए, डेट टू में। और अभी मैं अकेला इसको रन करूंगा ना, इट विल नॉट वर्क। ये बोल रहा है कि मेरा वेरिएबल ये कहाँ से आया, तो इसके लिए मुझे सबको एक साथ इकट्ठा रन करना पड़ेगा, ताकि डेट वन डेट टू सब कुछ एक साथ आ जाए। अब जैसे मैं अभी इसमें रन कर दूंगा तो मेरा डेट्स दिखा देगा, देखना। डेट वन डेट टू, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड विथ। ओके, इसमें मुझे कॉमा चाहिए, विथ के आगे कॉमा डाल, वो डाल दो, सेमीकोलन डाल दो। देखो आ गया, वही आ गया 20, 20 से 6, 6। जो मैं इधर लिख रहा था ना, मैं इधर ही डिफाइन कर दिया पहले ही, क्योंकि मैं इस डेट को बहुत जगह यूज करूंगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया कि मेरा डेट माने ये हो गया, और डेट टू बोले तो ये हो गया। और इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इसमें भी यूज कर सकता हूँ, फिर उसी डेट को मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ, उस टाइप से। समझे कि नहीं क्या क्या इसमें? तो इसमें मैं बोल दूंगा यूज ऑफ वेरिएबल, तुमको एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एंड रिकर्सिव। और मैं वेरिएबल, और कंफ्यूज मत हो कि वेरिएबल शुड बी ऑलवेज देयर इन रिकर्सिव, नो। मैं बस तुमको एक एडिशनल चीज यहाँ पे सिखाया कि वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं, एक एडिशनल थिंग। इसको मैं दूसरे इसमें दिखाता हूँ, छोड़ दो इसको। ठीक है, इसमें ऐसा ही रहने दो, रिकर्सिव में कंफ्यूज मत हो। तो अभी चलते हैं दोबारा बैक टू रिकर्सिव। वेरिएबल में थोड़ा देर बाद दिखा रहा हूँ। तो रिकर्सिव में भी पता लग गया क्या क्या होता है। तुम डेट के साथ भी कर सकते हो, नंबर के साथ भी कर सकते हो, जैसा अभी किया नंबर में। नंबर के साथ भी कर सकते हो, राइट। या तुमको प्लस वन नहीं चाहिए, प्लस टू चाहिए, वो भी कर सकते हो। मतलब 100 में प्लस टू टू करके मेरे को अप टू 110 तक दो। देखो 3 चाहिए, सो यू कैन बिल्ड योर ओन लॉजिक व्हेन यू नीड द डेटा। अब ये नंबर छोड़ दो, और क्या हो सकता है, जस्ट ट्राई टू थिंक। नेम मतलब डेट का कर लिया हमने, डेट प्लस डेट का कर लिया, डेट कैसे कैसे ऐड करते हैं, नंबर का हो गया, और क्या हो सकता है रिकर्सिव क्वेरी। तो थोड़ा समझ में आया ना, कुछ घुसा कि नहीं दिमाग में, ना कुछ भी नहीं घुस रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी बस तुमको समझ में आया कि नहीं क्या होता है। हाँ? Yes. थोड़ा सा मुश्किल है ये। सीटी तो समझ में आएगा ना, सीटी तो सिंपल है, राइट। कहीं भी तुम ऐसे सीटी लगा के, मतलब किसी भी एक उसमें जहाँ पे ऐसे सिटी नाम लिख दो, और ये सिटी, ये नॉर्मल सिटी, ये समझ में आया ना, ये सब तो समझ में आ गया। Yeah. बस रिकर्सिव में थोड़ा इशू आ रहा है, राइट। रिकर्सिव में कैसे करता है कंडीशन, तो जैसे इसीलिए मैं इसमें लिख दिया कि भाई ये एंकर क्वेरी तो मतलब स्टार्टिंग। सिटी क्या ज्यादा यूज होता है क्या सब हाँ, क्वेरीज सिटी, में? सिटी ज्यादा यूज होता है, मोस्टली सिटी यूज करना प्रिफरेबल है। अगर सिंपल सिंपल टास्क है, सिटी तुम्हारा क्वेरी को देखने में भी अच्छा कर देता है। जैसे इसमें देखो, इसमें सब क्वेरी कैसा लग रहा है कि भाई सिलेक्ट दैट फ्रॉम, अगेन सिलेक्ट दैट फ्रॉम। और इसमें देखो सिंपल है ना, कि भाई मैंने ये एवरेज निकाला, सिटी में डाला, और सिटी को मैंने कॉल कर लिया। जबकि ऐसे क्वेरी में तुमको सिटी की जरूरत नहीं है, ये मत एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो बस तुम ऐसे भी रन कर सकते हो ना, ये लाइन ही रन रन करने से आ जाएगा तुम्हारा। कहाँ कहाँ सिटी आएगा हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, एग्जांपल्स, तब हम लोग गो थ्रू करेंगे। बस तुम अभी कॉन्सेप्ट समझो। रिकर्सिव मतलब क्या होता है, इटरेटिव, मतलब उसको लूप कर कर करके मल्टीपल आइटम्स देना, फर्स्ट से सेकंड कंडीशन तक लूप करके देना, वो होता है रिकर्सिव।
अभी मैं एक दिखाता हूँ वो वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाला कहाँ का कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे थे ना अभी वेरिएबल का, वो वेरिएबल का कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय एग्जाम, सो इधर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर, ठीक है, @ जॉब varchar, ठीक है, 20 और कुछ भी दे दो, सेट क्या जॉब, मतलब तुम पहले बोल रहे हो कि मेरा जॉब को डिक्लेयर करो, और उसके बाद बोल रहे हो इस जॉब में क्या डालो, ये डालो कि मैनेजर, ठीक है, मैनेजर डालो। और मेरा इसमें ना ये जॉब को जॉब को वेयर क्लॉज में लगा दो। मतलब दिखा रहा हूँ एग्जांपल कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। वेयर जॉब इक्वल टू @जॉब। अभी जब दोनों एक साथ रन करोगे ना, देखो मैनेजर का आएगा, बस आ गया। ये क्या कर रहा है पता है, यहाँ पे तो जो मैनेजर लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना मैनेजर, ये आ जाता है, राइट। तो सेम बट चीज ये को, तो वेयर से भी आता है ना, हाँ मतलब आता है। ऐसे इतना यूज करने का क्या जरूरत है। हाँ तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये कहाँ का यूज होता है, मैं एग्जाम्पल गो थ्रू करेंगे। जैसे वेरिएबल कब यूज होता है पता है, जब तुमको पता है कि एक डेट चेंज होता रहेगा, और तुम मल्टीपल, बहुत ये एक लाइन है, तुम्हारा हजारों लाइन का क्वेरी है, और हजारों लाइन के क्वेरी में 3-4 जगह तुम्हारा डेट वाला यूज होता है। जैसे अभी दिखा रहा था ना डेट, जहाँ पे तुमको डेट बार बार जाकर ना मैन्युअली अपडेट करना पड़ रहा है, तो तुम इधर ही एक लाइन पे लिख दो, तब तुम इधर ही अपडेट करोगे ना, तो तुम्हारा सारा क्वेरी में वो काम कर जाएगा। जैसे देखो अभी मैं दिखाता हूँ, और मतलब मान लो, और एक है, और कहीं दूसरा है, और दूसरा टेबल से है, तीसरा टेबल से है, चौथा टेबल से है, तो तुम बार बार जाके इधर मैनेजर की जगह कुछ कुछ लिख दोगे ना। अब मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे एनालिस्ट चाहिए, तो बार बार इधर एनालिस्ट लिखोगे, इधर एनालिस्ट लिखोगे, इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, राइट। उससे से इधर ही लिख दो ना, एक ही बार एक टाइम में हो जाएगा। जैसे इस टेबल में और क्या है देख, एग्जांपल देता हूँ, सेल्समैन, राइट। सपोज तुमको सेल्समैन चाहिए, इसमें से भी चाहिए, इसमें से भी बोल रहा है कि सेल्स, सोचो ये दूसरा टेबल है, एम्प्लॉय नहीं है, दूसरा टेबल है, थिंक, इमेजिन ये से डिफरेंट टेबल। तो उधर से भी सेल्समैन चाहिए, इधर से भी सेल्समैन चाहिए, ठीक है, इधर से भी कितना बार लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा तुमको, है ना, समझ गए। यस, तो इसमें बहुत, मतलब डिफरेंट टेबल्स का भी आ जाएगा ऐसे। हाँ सबको एक साथ रन कर लो। जैसे इसमें सेल्समैन बोला था ना मैंने, अब इसमें जाके मैं सेल्समैन, बस इसमें कर दो। ये तुम्हारा जॉब में क्या डाला मैंने, सेल्समैन डाल दिया, तो ये जॉब मतलब कि सेल्समैन हो गया। आप इस सबको रन करोगे ना, देखना सब सेल्समैन का दिखा देगा, देखो सारा आ गया सेल्समैन का, ओनली सेल्समैन, देखो। अभी समझ में आ रहा है इजीली कि कहाँ पे यूज होता है वेरिएबल। wherever you have to यस। like enter multiple thing in a multiple lines, then better preferably use variable, so that you do not need to type again and again. Without variable also you can do it, but it will take some time for you. You need to hit 1 2 3 4 5 places, ये भी दे देगा तुमको, ये भी दे देगा। ये बिना सिलेक्ट डिक्लेयर सिलेक्ट करे बिना 5 दे देगा, लेकिन तुमको 5 बार हिट करना पड़ा। बट इफ यू डू सेम थिंग जस्ट वन टाइम, एक बार तुम @जॉब लिख के रख दो, हमेशा के लिए काम खत्म। जो भी चाहिए उसको बार बार वो लाके इधर से कर सकता है। अब थोड़ा सा इजी हो गया है, समझ में आ गया है वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना। यस। अब दोनों को लगा लो, बस हो गया। सेल्समैन की जगह तुमको अभी दोबारा मैनेजर चाहिए, तो दोबारा मैनेजर लगा दो, आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड। समझे कि नहीं। यस। मतलब वेरिएबल कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, कि एक प्लेस तुमने लिख दिया कि भाई
ये मेरा एक प्लेस है, थिंक अबाउट दिस, लाइक ये एक प्लेस होल्डर है। सपोज तुमने एक ऐसा जगह बोला कि घर पे ही मान लो, एक एक टेबल में एक होता है ना, एक टोकरी टाइप का, एक बॉल, लाइक ए बॉल वेयर यू कीप ऑल योर फ्रूट्स, बीट ऑरेंज, बीट लाइक एनीथिंग, यू जस्ट पुट देयर, राइट। वो खाली भी हो जाता है, फिर मार्केट में जाते हो दोबारा लाके उधर ही रख देते हो, राइट। फिर उधर से धो धो के खाते हो, बीट ग्रेप्स, ऑरेंज, ओके, apples, anything you keep there only, that particular ball. So think that ball as a variable is just an empty space. You are just utilizing by keeping your fruits on different day, different fruits. So like that, if you are here also, it's a ball and it's your fruit. You are just keeping your fruit in the ball. जो फ्रूट तुम बॉल में रखोगे वही तुम इसमें यूज कर सकते हो, खा सकते हो। अगर तुम्हारे बॉल में तुम्हारा ग्रेप्स, सपोज दिस इज योर बॉल इन योर टेबल, जो तुम्हारा बकेट है, और वहां पे तुमने ग्रेप्स रख दिया, और तुम इधर लिख रहे हो भाई मेरे को चाहिए एप्पल, तुमको देगा क्या? नहीं देगा ना। तो तुम जो यहाँ पे रखोगे वही तुमको मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैनेजर लिखा तो मैनेजर मिल गया, तुम दूसरा कुछ रखोगे तो दूसरा कुछ मिल जाएगा। तो इट्स जस्ट ए वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट तुमको वीबीए में भी काम आएगा, एक्सेल वीबीए में भी, वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो जब हम लोग कभी गो थ्रू करेंगे उसमें, तो उसमें दिखा दूंगा। एंड वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट तुमको पाइथन में भी जानना है, हर जगह जानना है। वेरिएबल इज नथिंग बट ए स्टोरेज, इज अ सिंपल स्टोरेज, जहाँ पे तुम एक स्पेस बना के लेते हो कि मेमोरी की मुझे इतना स्टोरेज दो, जहाँ पे मैं varchar 20 चाहिए मुझे, सो यू आर टेकिंग varchar 20। अगर तुम इसमें इंट लेते हैं ना, नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारा मैनेजर इज ए varchar, तुम इंट दे रहे हो। सैलरी अगर होता तुम varchar नहीं देते। तो यू आर क्रिएटिंग ए टेबल, सिंपली थिंक, यू आर क्रिएटिंग ए टेबल विथ ए कॉलम जॉब, जिसका डेटा टाइप है varchar, और तुमको इस varchar के लिए ही, job is nothing but a varchar, right? If you go to here, job is a string character, right? अगर तुमको मैनेजर आईडी चाहिए, सपोज मैनेजर आईडी, ये जॉब की जगह, ये जॉब की जगह तुमने मैनेजर इसमें लगा दिया, सैलरी लिख दिया, मान लो सैलरी, ठीक है। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे वेरिएबल यूज होगा। मैक्स सैलरी, हम्म, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सैलरी, ठीक है, सैलरी, सैलरी इक्वल टू, छोड़ो, लेट्स गो टू बेसिक पॉइंट, सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मैनेजर लिख रहे हो, यहाँ पे सैलरी लिख रहे हो, इट वर्क। सैलरी तुम्हारा अलग है, इंटीजर है, मैनेजर तुम्हारा ये है, नहीं काम करेगा, राइट। तुम कुछ दूसरा ही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। तो जॉब की जगह नाम तुम चेंज भी कर सकते हो वेरिएबल का, इन कर दो, और इसमें तुम सैलरी कितने चाहिए तुम कर दिया मैं, ठीक है, इक्वली ले रहा है, पता, इक्वल लेगा, एक्चुअली एक ही स्पेस लेगा, देखो आ गया, जितना 5000 है। ये जॉब को तुम दूसरा भी कर सकते हो, @सैलरी, वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करोगे तो इधर भी कर दो ना। तो ये वन टाइम ही है, एक बार ही डालोगे ना नाम, सैलरी के लिए सैलरी डालोगे ना, मैनेजर थोड़ी ना डालोगे। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, समझ में आ गया। ये सपोज डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है, टेबल 1, टेबल 2, डिफरेंट डिफरेंट टेबल, सेम टेबल में तुम क्यों करोगे, राइट। बस yes, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। ये तुमने yes, डिक्लेयर किया कि सैलरी नाम का मेरा एक इंट बना दो, और उसमें मेरे को 5000 डाल दो, और वो एक क्लॉज में वो वाला यूज करो, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल का। सो वी वेंट थ्रू सीटीई, रिकर्सिव सीटी, टेम्प टेबल एंड वेरिएबल, और एंड वी आल्सो वेंट थ्रू टुडे डिलीट एंड ट्रंकेट का एग्जांपल्स, ठीक है। इसको फिर और अच्छे से गो थ्रू करेंगे लेटर ऑन। अभी किसी को कुछ डाउट है ये सब में? नहीं है, राइट।